છે બાળકો, હું ગોહિલ દેવ્યાનીબેન સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અત્યાર સુધી આપણે 20 લેસન છે અથવા ચેપ્ટર છે એ પૂર્ણ કરેલા છે અને છેલ્લે મેં કહ્યું હતું કે આપણે 21મું જે लेसन है पहेलिया और मुकरिया उसकी चर्चा करेंगे. उसके साथ साथ व्याकरण का एक टॉपिक है वो भी हम चलाएंगे. तो पहले उसके साहित्य जगत है उसकी चर्चा हम करेंगे. अमीर खुसरो उसके लेखक है. जन्म सन 1253 और निधन सन 1325. पहेलिया और मुकरिया, पहेलिया यानी कोयडा અને મુકરિયા યાની જોડકણા. આપણે નાના નાના હતા ત્યારે આ બધા જોડકણા છે, ઉખાણા છે, આવું ઘણું બધું આપણે ગુજરાતી સાહિત્ય સાથે જોડાયેલા હતા. પણ હિન્દીની અંદર પણ આવું બધું છે એ રહેલું છે. अमीर खुसरो की रोचक पहेलियाँ एवं मुकरिया प्रसिद्ध है. इस इकाई में 4 पहेलियाँ और 3 मुकरिया दी गई है जिसको हमें समझकर याद रखना है. आदिकाल की राज्यश्रम परंपरा के साथ साथ अमीर खुसरो ने लोक जीवन में अपने रंगों में रंग लिया है. उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद का सुंदर रचनाओं के साथ सामग्री प्रस्तुत हुई है. संकलित पहेलियाँ और मुकरिया अर्थ अभिव्यक्ति कर कवि ने एक अच्छा कौशल्य है वो प्राप्त किया है. उनकी पहेलिया में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु को नाम पूछा जाता है. मुकरियों में आरंभ से कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात को और संकेत किया है. इन पहेलिया और मुकरियों में जो विनोद की परंपरा है वह जारी है. ज्ञान की कसौटी भी की जा सकती है विद्यार्थी जीवन में. साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होती है. પેલા કહેતા ને કાળી કાળી ધોળી ગાય પાણી પીને ચરવા જાય, બસ જે વાત છે જેનો લય એકબીજા સાથે જોડાયેલો છે, તો એવી જ અહીંયા પહેલિયા અને મુકરિયા તમારી સામે રાખેલી છે જેને આપણે ભાવાર્થ દ્વારા સમજીએ. जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? उत्तर तो आपको दिया ही है, फिर भी कहना क्या चाहते हैं तो कि जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया क्योंकि जूते में तला नहीं था और समोसा कहाड़ी में तला नहीं गया था. आप समझ सकते हैं कि जूता पहना नहीं, जूता એટલે ચપ્પલ એ પહેર્યા નહીં. શું કામે? તો કે એને તલા એટલે તળ્યું નહોતું. અને સમોસા છે એ પણ ખાધા નહીં. શું કામે? તો કે ઉસે તલા હુઆ નહીં હતા, એટલે એને તળ્યા નહોતા. કારણ કે કાચા સમોસા ખાઈએ આપણે, તળાઈ ગયા પછી જેમાં સ્વાદ આવે ને, કારણ કે કડક થઈ જાય અને મસાલાનો ટેસ્ટ સરસ આવે. ઓલા તો કાચી પૂરીમાં ભરેલા હોય અને કાચી પૂરી તો આપણે ન ખાઈએ. એટલે જેમ ચપ્પલમાં તળ્યું નહોતું એમ સમોસાને પણ તળ્યા નહોતા. કહેવાનો અર્થ શું? તલા નહીં હતા. એક જ અર્થના 2 મીનિંગ છે. दूसरा, अनार क्यों न चखा, बजीर क्यों न रखा. जो अनार એટલે એક દાણેદાર ફળ જેને આપણે દાડમ કહીએ છીએ. बजीर એટલે मंत्री. बजीर का अर्थ क्या होता है? मंत्री. जो अनार नहीं चखा और बजीर का चुनाव नहीं किया क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और उम्मीदवार में कोई दानेदार आदमी नहीं था. दानेदार यानी बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति नहीं था जिसे वजीर के रूप में चुना जा सके. આપણે કહેવાય ને કે આ દાણાવાળો વ્યક્તિ નથી, પાણીવાળો વ્યક્તિ નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે શાસન ઉપર કે સીટ ઉપર બેસાડવો હોય તો આપણે સૌથી પહેલાં એની અંદર શું જોઈએ છે? લાયકાત જોઈએ છે. આપણે શું કે આનામાં કાંઈ દમ નથી હો, આ દાણાવાળો વ્યક્તિ નથી, એટલે આ પાણીવાળો વ્યક્તિ નથી. અનાર એટલે દાડમ એટલા માટે ન ખાધું, એમાં દાણા નહોતા, અને સામેવાળો એટલા માટે ન રાખ્યો કે એમાં પણ દમ નહોતો. એમ रोटी जली क्यों, घोड़ा अंडा क्यों, पान सड़ा क्यों. उत्तर फेरा न था. जो रोटी क्यों जल गई? इसलिए कि तवे पर उसे उल्टा नहीं गया.
રોટલી આપણે બનાવીએ તો એને શેકવી પડે, આમથી આમ ફેરવવી પડે. સેજ દાચ પડી જાય એટલે આપણે બીજી બાજુ ફેરવવાની, ત્યાં દાચ પડી જાય પછી ફરી વાર ફેરવો એટલે રોટલી સરસ ફૂલેલી થાય. એમ રોટલીને તમે ફેરવો છો ને એક જ બાજુ રાખો તો શું થાય છે? બળી જાય, એટલે જલી. ઉસી પ્રકાર ઘોડા સવારી અથવા જોતને કે સમય ક્યો અડ ગયા. સવારી જ્યારે કરવાની હોય ત્યારે ચાલે જ નહીં. ઘણી વાર કહેવાય ને કે આ ઘોડો આજે બગડી ગયો છે, અડ ગયા થા. इसलिए कि उसने सिखाया था, तैयारी नहीं किया ગયા થા. ઘોડાને જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રસંગની અંદર જોજો, જ્યારે ઘોડો તમે બોલાવો છો XYZ લગ્ન પ્રસંગની અંદર, બરાબર, તો એ ઘોડાને સૌથી પહેલાં સવારથી એને તૈયાર કરવો પડે, એને સરસ ખવડાવવું પડે, એના કેટલાય ખંભા ઉપર, વાહા ઉપર, પીઠ ઉપર એને હાથ ફેરવવો પડે, એને થપથપાવવો પડે. પછી એનો માલિક છે એ લગામ પકડીને ચાલીને રાખે, એને હળવેકથી એની ઉપર બેસાડવા માટે કેટલા પહેલાં પંપાળે, પછી એને બેસાડે. તો એને પહેલાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. અને જ્યારે તમે એને તૈયાર ન કરો ત્યારે પોતાના જિદ્દીપણું છે એ જાહેર કરે છે. पान क्यों सड़ गया? इसलिए कि पान की पत्तियों को उल्टा पलट कर उसके सड़े हिस्से को काट कर निकाला नहीं गया था. एक पान સડેલું હોય ને એની ઉપર બીજા ત્રીજા પાન મૂકી દો તો થોડા સમયમાં જેની સાથે જોડાયેલા છે એ પાન પણ સડી જાય. એટલે પાન સડે નહીં એટલે એકાબીજાને દૂર રાખવામાં આવે અને ફેરવતા રહેવા પડે, જેથી સડેલું પાન છે સુકાઈ જાય અને બીજા પાન પણ સડે નહીં. उसको फेरा न था. जो રોટલીને ફેરવી નહીં એટલે બળી ગઈ. ઘોડો છે એને પણ ફેરા જાય ત્યારે એને સંભાળવો પડે અને પાન છે એને પણ ફેરવવા પડે, એટલે ફેરા ન થાય એનો જવાબ આવે. એક નારી કે હે દો બાલક, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक टाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग चक्की के पाठ. जो एक नारी के एक औरत के दो बच्चे थे, इन दोनों बच्चों का एक जैसा ही रंग था. ઘણી વખત આપણે કહીએ ને ટ્વિન્સ બાળકો છે, જોડિયા બાળકો છે, એક જ સરખા દેખાય તમને, રૂપ રંગ એની. આમ તમે જો ને કે અમુક ઉંમર સુધી એની દરેક ક્રિયા સાથે થતી હોય, ખાવાનું સાથે, સૂવાનું સાથે, રોવાનું સાથે, બેસવાનું સાથે, બધી જ ક્રિયા સાથે થતી હોય. તો એક ही जैसा रंग था, एक जैसा आकार था, लेकिन उनमें एक चलता रहता था और दूसरा अपनी जगह पर स्थिर रहता था. एक ચાલતો હતો અને બીજો એક જ જગ્યાએ સ્થિર હતો. इसके बावजूद दोनों साथ साथ ही रहते थे. એક બેસતો હતો અને એક ચાલતો જ તો, છતાં પણ બંને સાથે જ હતા એમ. दोनों लड़के चक्की यानी चाकी के दोनों पल्ले है, एक पल्ला स्थिर रहता है और दूसरा पल्ला चलता रहता है, तभी अनाज पीसता है. ચાકી એટલે તમે જુઓ ઓલા જેને ઘંટલો કહેવાય, એમાં એક પડ હોય ને નીચે એમને સ્થિર રહે અને બીજા પડને આપણે આમ હલાવવું પડે આમાં. એટલે બે છોકરા, એક સ્થિર છે ને બીજો ચાલે છે. ને ચક્કી કે પાટ, પાટ એટલે ના જે બે વ્હીલ આવે ને, એક ગોળ હોય હેન્ડલ વાળું, હાથાવાળું, અને એક સ્થિર વચ્ચે બોલ વાળું હોય. અબ મુકરિયા. जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा. जो मुकरिया में क्या कहती, यह आदेश का पालन करने वाला है. जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर होता है. वह मेरी प्यास बुझा देता है. उसका तन पानी यानी आकार बहुत छोटा है, पर उससे पानी काफ़ी आता है. यह सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी क्या यह साजन है? जनाब मैं कहती ही नहीं, साजन नहीं सखी वह लोटा है. તમે ઘરે લોટાનો આકાર જોયો હશે, આગળથી મોઢું છે એ કેવું હોય, નાનું હોય ને. ઘણા લોટાના ઘણા બધા આકાર હોય છે, પણ મોસ્ટ ઓફ તમે છે એ આવા આકારનો છે એ લોટો જોયેલો હશે. તો ખાસ જો અહીંથી પોળો છે, અહીંથી સાંકડો છે, બરાબર.
ઘણા બધા આકાર લોટા હોય, ઘણા ચપટા હોય ને એવા બધા હોય છે, પણ જો આગળથી નાનું છે પણ છતાં પાણી ઘણું બધું છે એની અંદર, જ્યારે માંગે ત્યારે આવે ટીપું, તમે કૂટડો કૂટડો પીવો એટલે એવી રીતના પાણી આવે છે। એટલે આકાર મેં આપ દેખ सकते, પાણી માંગે ત્યારે પાણી આપે છે, એટલે पानी अंदर बहुत काफ़ी रहता है। तो है सखी है साजन, એ શું સાજન છે? તો કે નહીં, એ લોટા, લોટા એટલે લોટો છે। व आवे तो शादी होय, उन बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है। આપણે કહેવાય ને કે લગ્ન પ્રસંગ હોય ત્યાં ગાવાનું અને નાચવાનું ન હોય તો લગ્ન પ્રસંગમાં મજા આવે નહીં, કારણ કે હાવ મૂંગે મૂંગો પ્રસંગ તો કોઈને ત્યાં ન હોય। ભલે તમે બહારથી ડીજેનો મંગાવો કે કોઈ બેન્ડ વાજાને ન બોલાવો, તો ઘરે ને ઘરે કેસેટ ઉપર, ડીવીડી ઉપર તમે બધા ભેગા થઈને નાચી શકો, પણ એના વગર પ્રસંગ શક્ય નથી। એટલે અહીંયા કહ્યું છે કે શાદી ब्याह में उनका आना आवश्यक है, यह काम और कोई नहीं कर सकता। આપણે ગળામાં ઢોલ લઈને વગાડીએ તો કેવા લાગે, એટલે એ કામ એ જ કરી શકે છે। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं, ત્યારે તમે વગાડતા હોય એટલે વધારે તાન ચડતું હોય અને વધારે ઉમંગથી આપણે નાચતા હોઈએ છીએ। એક સખી પ્રશ્ન પૂછે વાલી સખી સે કહેતી है, એક બેનપણી પોતાની બીજી બેનપણીને કહે છે, સખી क्या वे साजन है? जनाब मैं कहती हूँ नहीं साजन नहीं, सखी वर्ड ढोल है। કે શું એ સાજન છે? તો કે ના, સાજન નહીં પણ એ ઢોલ છે, કે જેના તાન ઉપર, જેના તાલ ઉપર લોકો છે એ નાચી રહ્યા છે। અને છેલ્લે અંતમાં, અંતિમ સુરંગ હે રંગ રંગીલે, હે ગુણવંત બહુ ચટકીલા, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। फरी कहे छे कि बहुत सुंदर रंग वाला है और बहुत सुंदर है, रंग बेरंगी है और उनके साथ बहुत सुंदर भी दिखता है। वह बहुत गुणी और गाढ़े रंग वाला है, गाढ़े એટલે ઘેરા રંગ વાળો છે। બધા પક્ષીઓમાં તમે જુઓ, ચકલી છે, મેના છે, કાબર છે, કોયલ છે, કાગડો છે, એમ પોપટ, આ બધાના અંદર ઘાટો કોઈનો કલર હોય ને તો એ પોપટનો છે, એટલે ગાઢે રંગ કા હે। वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता है। પોપટ છે એ જોજો સીતારામ 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 સીતારામ, રામ 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 બોલતો હોય છે, એટલે રામના નામ વગર એ સૂતો નથી। એક સખી પોતાની બીજી બેનપણીને, એટલે સખી अपने प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि जनाब रूप में पूछती हूँ कि सखी क्या वे साजन है? और जवाब में कहती है नहीं नहीं सखी, ये साजन नहीं, यह तो तोता है। કે શું આ સાજન છે? તો કે નહીં, સાજન નહીં પણ આ તોતા એટલે પોપટ છે। આપણે અહીંયા ગુજરાતીની અંદર કહ્યું છે કે જોડકણા અને કોયડાઓ છે એનો અર્થ આપણે જોયો છે। સાથે સાથે તમને અહીંયા સ્વાધ્યાય પણ આપેલો છે। તલા શબ્દ કે દો અર્થ બતાવીએ, એક તળવાવાળું ગરમ તેલ અને બીજો અર્થ છે નીચે કા હિસ્સા, જેને તળિયું કહેવાય। પછી वजीर के दाने नहीं थे, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वजीर दाने वाला, यानी बुद्धिमान, पानी वालों होना चाहिए। ढोल और साजन में क्या समानता है? तो हम देखते हैं कि ढोल और साजन इन दो शब्द है। शादी में जब ढोल बजाया जाए तो साजन दोनों की ज़रूरत होती है। ढोल में मधुर स्वर निकलते हैं और साजन से सजनी का विवाह होता है। ढोल की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, उसी प्रकार शादी में साजन के बिना कोई स्वर नहीं होता, इसलिए दोनों मीठे ही शब्दों में गाते हैं। राम भजन बिना कौन नहीं सोता? तो तोता। तो अब इस प्रकार मैंने स्वाध्याय के 2-3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको दिए हैं, और उसके साथ साथ हमें जो 21 तक हमारा जो लेसन है उनकी चर्चा भी हमने की है। उसके साथ साथ आपके पाठ्य पुस्तक में कई ऐसे
व्याकरण के टॉपिक है जिसकी चर्चा मैंने बताई थी कि हम करेंगे, तो वैसा ही एक मामूली सा टॉपिक है वह आज हम लेते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है पत्र लेखन। आपके हिंदी साहित्य के अंदर एग्ज़ाम के अंदर भी आपको यह टॉपिक है वह पढ़ना है। तो आप पहले से ही इस टॉपिक के साथ अनजान नहीं है, यानी अच्छी तरीके से आप उसे जानते हैं, फिर भी इसकी चर्चा है हम आज करने वाले हैं। पत्र लेखन हम किसे कहते हैं, किस शब्दों को हम पत्र लेखन के द्वारा समझाते हैं। तो आपको पता है कि पत्र लेखन के कई सारे नमूने होते हैं। सबसे पहले है किसी भी सामाजिक अथवा कार्यलीन विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। जो खास इस बात को नोट करते जाएंगे आप कि पत्र लेखन है उसकी क्या अहमियत है। तो किसी खास बात को उसी के जरिए तो कई उसके टॉपिक है। तो एक सामाजिक कार्य के लिए, और दूसरा है कार्यकारी। इन दो वजह से हम पत्र है वह लिखते हैं। तो सबसे पहले पत्र के लिए ध्यान में रखने वाली बात कौन सी होती है, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले है स्थान और तिथि, पत्र में ध्यान रखने वाली बाबत। तो उसमें पहला है स्थान और तिथि। यह सबसे अहम मुद्दा है कि सबसे पहले हमें स्थान और तिथि यानी तारीख, तिथि यानी तारीख, इस बात को हमें सबसे महत्वपूर्ण देना है। या कहीं पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमें पत्र लिखना है तो एक हमारे पास एक ढांचा होता है कि आपका यह पेज है, तो यहाँ पर यह रूप है आपका, तो यहाँ पर आपको पत्र है उसका एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। तो यह उसका एक स्थान हुआ और उसकी तारीख निश्चित हुई कि 25 सेक्टर अहमदाबाद, और तिथि यानी तारीख। तो यह आप जान सकते हैं कि यह पत्र का एक ढांचा है। और तारीख खास आपको लिखनी है 19 जून, कोई भी तारीख आप लिख सकते हैं, 19 जून 2020, 19 जून 2020 यानी 2018, 2017। तो यह स्थान भी हुआ और तारीख भी हुई। तो सबसे अहम बात है कि उसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, तो हमारा जो पेज है उसमें एक एड्रेस होना चाहिए और एड्रेस के नीचे तारीख खास हमें नोट करनी है। दूसरी बात, अब आता है संबोधन और अभिवादन। दूसरा क्या है, संबोधन और अभिवादन।
हमें संबोधन करना है और अभिवादन करना है। अब संबंध और अभिवादन, उसमें भी 2-3 प्रकार आते हैं। एक घरेलू पत्र होता है, दूसरा कार्यालयीन पत्र, कार्यालयीन पत्र और व्यावसायिक पत्र। जो पत्र के यह 3 प्रकार है। प्रकार तो हमने देख लिए 2 ही है, पर उनमें से संबोधन घरेलू पत्र में जैसे कि मामा मासी, यानी हम घर के किसी सदस्य को पत्र लिखते। दूसरा है कार्यकालीन, या किसी ऑफिस और दफ्तर में जैसे हम पत्र लिखते हैं। और तीसरा है व्यावसायिक पत्र, यानी हम किसी बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं, किसी व्यवसाय के बारे में पत्र लिखते हैं। तो इन तीनों के संबोधन हैं वह अलग अलग होते हैं। जैसे कि घरेलू पत्र में सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार, यहाँ पर मैं सामने लिखती हूँ, सादर प्रणाम, नमस्कार जैसे शब्द है वो आप यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार कार्यकालीन पत्र है, उसमें सबसे पहले विशेष संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके सेवा में लिखा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि पत्र किस प्रकार का है, उसी प्रकार उस संदर्भ में कार्यकालीन के संदर्भ में हम लिख सकते हैं। और व्यावसायिक पत्र में भी हम लिखते हैं, सेवा में स्थान पर प्रति लिखा जाता है। जिस तरह यहाँ एक जेट प्रति शब्द से हम इस दोनों पत्र की शुरुआत करते हैं। प्रति माननीय साहेब श्री, माननीय साहेब श्री, जैसे जय भारत है, जैसे शब्द है हम यहाँ पर उसके साथ हम रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह पत्र है उसकी चर्चा की है। और पहला है स्थान, दूसरा है संबोधन, तीसरा है पत्र का कलेवर, कलेवर यानी विषय। तीसरा है पत्र का कलेवर, कलेवर यानी विषय, कौन किस विषय में हम चर्चा करेंगे। संबोधन और अभिवादन के नीचे से पत्र के कलेवर का आरंभ होता है और उचित अनुचित शब्दों में बांट लिया जाता है। और अंत में है समाप्ति और चौथा है समाप्ति। तो हमने अभी देखा, जब मैंने आपको यहाँ पर बताया तो यहाँ पर हमने देखा कि यह पत्र आपका है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ आपने प्रति के द्वारा यहाँ संबोधित करना है, फिर आपको जो पत्र लिखना है उसकी चर्चा करनी है और अंत में यहाँ पर आपको समाप्ति करनी है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ स्थान और स्थिति आएगी, यहाँ संबोधन आएगा, यहाँ जिस उद्देश्य से आप पत्र लिखना चाहते, जिसको घरेलू हो, कार्यालयीन हो या व्यावसायिक हो, जो चर्चा करना चाहते हैं वह बात, और अंत में समाप्ति। समाप्ति यानी आपका आज्ञाकारी, जो बात लिख सकते हो, आपका आज्ञाकारी, पुत्र पुत्री, जो भी आप लिखना चाहते हो वो बात। तो अब आपको पता चल गया कि किसी न किसी ऐसी चर्चा है, पत्र है, यह पत्र का नमूना भी है, पत्र की बातें जो खास ध्यान में रखने वाली बात है। किसी भी विषय में
संबोधित वाले भयभीत लिखने वाली चाहिए, क्योंकि स्थान, तिथि, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति आदि रहने पर भी पत्र के क्लेवर के बारे में कुछ भी न लिखने पर अंक नहीं दिए जाते। आपको यह बात खास नोट करनी है और इसको अपने मन में, यह पत्र का जो ढांचा है ये आपको अपने मन में बैठाना है, क्योंकि पत्र का एड्रेस तो आपको दिया जाएगा। जैसे कि सिटी पॉइंट सूरत में सागर कालियाणी आनंद निवास अपने मित्र समीर को अपने छोटे भाई भोलू के अवसान पर आश्वासन देते हुए पत्र लिखना है। जो आश्वासन देना है यानी यह घरेलू पत्र हुआ। तो एड्रेस तो दिया है, 15 सितंबर हम लिख सकते हैं। पत्र तो के प्रिय मित्र है उसके नमस्ते, बहुत काल से जो अपने जो भैया है जो बीमार चले आ रहे हैं उसका अवसान हुआ है और इससे मुझे गहरा चोट लगी है, तो ईश्वर उसकी आत्मा को मुक्ति दे, ऐसी बात है वो हमें कहनी चाहिए। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम सबको इस शोक से बाहर निकाला जा सके। तुम्हारा प्रिय मित्र सागर, नमस्कार। तो इस तरह आप, मैंने जो पत्र का नमूना बताया आपको अभी, तो इस तरह आप पत्र है वह लिख सकते हैं। और पत्र लेखन के बारे में कोई भी तुम सबको कहीं भी दिक्कत हो तो तुम हमें बता सकते हो। और आगे के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और एक व्याकरण के टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।